हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे की और ये हमारा है चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिक पढ़ा था हिमाचल की अर्थव्यवस्था के बारे में और इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। इस चैप्टर में हम बात करेंगे राज्य की अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त एवं कराधान। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक ओवरव्यू है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। Chapter 2 gives an overview of the Himachal economy and outline comparative importance and performance of different sectors of the economy. Advanced estimates suggest that the state's economy is expected to witness real GDP growth of 8.3% in 2021-22. In real terms, the increase in GSDP pre-COVID and post-COVID 2019-22, 21-22 is 2.7%. The average annual growth rate for last 8 years was 6.6%. In several sectors of the economy, pre-pandemic levels of output have been crossed. Real GDP or GDP at constant prices 2011-12 in the year 21-22 is estimated at 1,24,400 crores as against the provisional estimate of GDP for the year 2021 of 1,14,814 crore. So nominal GDP is estimated at 1,75,173 crore. यहाँ पे GDP की बात कर रहे हैं तो लास्ट में हमने किया था नॉमिनल GDP होती है एंड रियल GDP होती है। रियल GDP is estimated at 1,24,400 crore, 1,24,400 करोड़। और जो नॉमिनल जीडीपी है वो एस्टिमेटेड है 1,75,173 करोड़ एज अगेंस्ट द प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी फॉर द ईयर 2021 ऑफ ₹1,56,675 करोड़। पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस इज एस्टिमेटेड एट 2,01,854 which is more than the estimated national per capita income for 2021 by ₹51,528 as against the provisional estimate of GDP for the year 2021 of 1,56,675 crore. Per capita income at current price is estimated at 2,01,854 which is more than the estimated national per capita income for 2021 by ₹51,528. The growth in per capita income during 21-22 is estimated at 10.1%. Agriculture and allied sector have been the least impacted by the pandemic and sector is expected to grow by 8.7%. As per advanced estimate, GVA of industry will rise 11% in 21-22 after contracting 7.3% in 2021. The services sector have been the hardest hit by the pandemic. This sector is estimated to grow by 6.3% during 21-22. Tourism is an important source of generation of revenue and diverse employment opportunities. A significant rise was noticed in the domestic as well as foreign tourist inflow during the last few years. But due to impact of COVID-19, there was a sharp decrease of 81% in tourist arrival in 2020. However, on the positive side, there is an increase of 75.44% in tourist inflow up to December 21. Next, according to the budget estimate for the year 21-22, the total revenue receipts were estimated at 37,028 crore as against 35,588 crore in 2021 revised estimates. For the financial year 2021, the state excise and taxation department collected 7,044.24 crore taxes under different heads against a target of 6,886.13 crore, which is 2.30% more than the target. During the financial year 21-22 up to December 21, the department has collected 6,232.24 crore taxes under different heads against the annual target of 6,964.84 crore. As per the budget estimate, the revenue receipts of the government for the year 21-22 were estimated to be 21.14% of GSDP, revised to 22.71% in 2021 revised estimates. Similarly, the tax revenue for the year 21-22 was estimated at 8.45% of GSDP as compared to 7.86% during 2021. Non-tax revenue is 1.57% of GSDP in 21-22.
as compared to 1.45% during 2020. Fiscal deficit estimated is 4.45% of GSDP in 21-22 as compared to 4.11% in 2021. In 21-22, the total expenditure of state is estimated at 28.65%. Revenue expenditure at 21.97% and capital expenditure is estimated at 3.43% of the GST. तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में पढ़ा कि ये चैप्टर क्या टारगेट करने वाला है, और अभी मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा समराइज करता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो या बजट। इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाहर जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आधे अधूरे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी योजना सरकार लाने वाली है, कौन सी योजना कैसा परफॉर्म किया है, पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, क्या बजट एलोकेट हुआ है, तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे और बजट में ही पता चलती है, और यहीं से क्वेश्चंस भी जनरेट होते हैं। सो बेटर यह है कि इन पे फोकस किया जाए। दूसरी बात यह है कि हमें जल्दी रहती है, तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। एंड एक जो वीकनेस मैं कहूंगा कि हमें हिंदी में पढ़ना बढ़िया लगता है, लेकिन हिंदी के जो टोटल वर्ड होते हैं वो हमें समझ ही नहीं आते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बात करता हूँ, जो चैप्टर 2 हम कर रहे हैं, जो हमने पीके किया, मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट करता हूँ। ये हिमाचल की अर्थव्यवस्था का एक अवलोकन दर्शाता है। तो यहाँ पे जैसे अवलोकन वर्ड आ गया, तो मीन्स अवलोकन से आप क्या समझोगे? अवलोकन मीन्स आउटलाइंस, ओवरव्यू। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन हिंदी। यह हिमाचल की अर्थव्यवस्था का एक अवलोकन दर्शाता है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के तुलनात्मक महत्व और प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। अग्रिम अनुमान, एडवांस एस्टिमेट्स, बताते हैं कि वर्ष 2020-21 राज्य की अर्थव्यवस्था में संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन के बाद 2021-22 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान है। वास्तविक रूप में, अब यहाँ पे जो मैंने बात की रियल जीडीपी की बात की, रियल जीडीपी की जो ग्रोथ है 8.3% रहने का अनुमान है। तो रियल जीडीपी मीन्स वास्तविक, यानी कि रियल सकल घरेलू उत्पाद। वास्तविक रूप में सकल घरेलू उत्पाद में पूर्व कोविड और कोविड के बाद में वर्ष 2019-20 से 21-22 में 2.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो रियल टर्म्स, रियल जीडीपी की बात हो रही है। रियल जीडीपी में कहा जा रहा है कि 8.3% की वृद्धि का 2.7% की वृद्धि हुई है। पिछले 8 वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.6% थी। अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों के उत्पादन ने पूर्व महामारी के स्तर को पार कर लिया है। वर्ष 2021-22 में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद या वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 1,24,400 करोड़ है, जबकि वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अस्थायी अनुमान 1,14,814 करोड़ है। वर्ष 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 1,75,178 करोड़ है, जबकि वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अस्थायी अनुमान 1,56,675 करोड़ है। वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2,01,854 होने का अनुमान है, जो अनुमानित राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से 51,528 रुपए अधिक है। वर्ष 2021-22 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 10.1% रहने का अनुमान है। महामारी से कृषि और संबंध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए हैं और वर्ष 2021-22 में इस क्षेत्र में 8.7% की वृद्धि होने का अनुमान है। यानी कि जो कृषि और इसके संबंध क्षेत्र हैं उनको बहुत कम इंपैक्ट पड़ा है कोविड से, और इसमें 8.7% की वृद्धि होने का अनुमान है। तो आगे बोलते हैं, एडवांस एस्टिमेट्स के अनुसार उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य जीवीए, सकल मूल्य वर्धन वर्ष 2021-22 में 11% तक बढ़ जाएगा, जो 2020-21 में 7.3% घटा था। सेवा क्षेत्र महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, यानी कि सर्विसेज सेक्टर, और अभी अनुमान है कि यह 6.3% तक बढ़ेगा 2021-22 में। पर्यटन, राजस्व और विविध रोजगारों के अवसरों के सृजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान घरेलू और साथ ही विदेशी पर्यटकों की आमद में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई
देखी गई, लेकिन कोविड के प्रभाव के कारण 2020 में पर्यटकों के आगमन में 81% की तीव्र कमी थी। हालांकि दिसंबर 2021 तक पर्यटकों की आमद में 75.44% की वृद्धि हुई है। आगे कहता है, वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 37,028 करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि 2020-21 के संशोधित अनुमान में यह 35,588 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग ने 6,886.13 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में विभिन्न मदों के तहत 7,044.24 करोड़ रुपए एकत्रित किए, जो तय लक्ष्य से 2.30% अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक विभाग ने विभिन्न मदों के तहत 6,232 करोड़ एकत्रित किए हैं, जबकि वार्षिक लक्ष्य 6,964 करोड़ का था। बजट अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.14% रहने का अनुमान है, जो 2020-21 के संशोधित अनुमानों में 22.71% थी, और अभी कुछ कम यानी कि 21.14, पहले थी 22.71। इसी तरह वर्ष 2021-22 के लिए कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 8.45% होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 के दौरान यह 7.86% था। गैर कर राजस्व वर्ष 2020-21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.45% की तुलना में 2021-22 में 1.57% है, जबकि 21-22 में राजकोषीय घाटे का अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.45% है, जबकि वर्ष 2020-21 में 4.11%। वर्ष 2021-22 में राज्य का कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.65%, राजस्व व्यय 21.97% और पूंजीगत व्यय 3.43% था। तो ये था ओवरव्यू एक। अब हम बात करेंगे बजट की, एंड बजट को समझने का प्रयास करेंगे। एंड इसका चैप्टर का नाम है स्टेट इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेट इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन। यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, ऑन द वन हैंड इट्स ग्रोथ रिमेन्ड एट पर विद द नेशनल ग्रोथ रेट, ऑन द अदर हैंड द स्टेट हैज सिक्योर्ड हाई रैंकिंग इन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। एस्टिमेट्स ऑफ GSDP at constant prices. So, first revised estimates of the GSDP of Himachal Pradesh at constant prices for 2021 is 1,14,814 करोड़, जो अभी के लिए लेटेस्ट है, एज अगेंस्ट 1,21,168 करोड़ इन 1920। और सेकंड रिवाइज एस्टिमेट इंडिकेटिंग ए ग्रोथ ऑफ -5.2% इन कंपैरिजन विद इंडिया GDP ग्रोथ रेट ऑफ 6.6% ऑफ 2021। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं यहां पे कि एक तरफ राज्य की जो आर्थिक विकास दर थी वो राष्ट्रीय विकास दर के बराबर रही हिमाचल की, और दूसरी तरफ हिमाचल ने विकास संकेतकों में उच्च रैंकिंग हासिल की। तो स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान, स्थिर कीमतों पर हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2019-20 में 1,21,168 करोड़ था। दूसरे संशोधित अनुमान में जो कि वर्ष 2020-21 में 1,14,814 करोड़ था, पहला संशोधित अनुमान। 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर -5.2% रही, जबकि अगर नेशनल लेवल की बात करें तो यह वृद्धि दर -6.6% थी। तो यानी कि यहाँ पे हिमाचल ने बेटर किया, क्योंकि -5% थी और राष्ट्रीय स्तर पर -6.6% थी। यानी कि माइनस में है तो 0 से -5.2 जो है वो बहुत नजदीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा द इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड सेक्टर्स। 3 सेक्टर में डिवाइड किया है इकोनॉमी को। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड है टर्सरी सेक्टर, जिसको कि सर्विसेज सेक्टर भी कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर कंप्राइजेज एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लिवस्टॉक, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग सब सेक्टर्स।
Agriculture with its allied sector supporting about 56.5% of population as per periodic labor force survey. 1920 registered a growth of -12% in 2021 at constant prices with a GVA of 14,411 crore as compared to 16,369 crore during 1920. Second revised estimates. In Himachal Pradesh, horticulture is no longer treated as a subsector of agriculture, and since it has crossed agriculture in terms of value addition. Livestock sector emerged as an alternative and dependable source of income generation. In 2021, production of milk increased by 2.95% and that of eggs by 4.20%. However, meat production decreased by 9.60% minus. The livestock and fisheries sector registered a growth of 5.6% and 9.6%. Forestry and mining have shown growth of -19.6 and -6.8 respectively in 2021 first revised estimates. तो यहाँ पे बात की जा रही है प्राइमरी सेक्टर की, यानी कि प्राथमिक जो क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, बागवानी, पशुधन यानी कि जो गाय, भैंसे, बकरी, वानिकी एवं लट्ठे, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन उप क्षेत्र शामिल है। कृषि और इसके जो संबंध क्षेत्र हैं, इन पर 56.5% की जनसंख्या जो है हिमाचल की वो निर्भर करती है। वर्ष 2020-21 में -12% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 में वर्ष 2020-21 में स्थिर कीमतें ली जाती है 2021-22 की। कृषि और इसके जो क्षेत्र है संबंध क्षेत्र, उनका सकल मूल्य वर्धन 14,414 करोड़ हुआ है और ये पिछले वर्ष 2019-20 में 16,369 करोड़ था। हिमाचल प्रदेश में अब जो बागवानी है यानी कि फल सब्जियां, अब कृषि का उपक्षेत्र नहीं कहा जाता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हॉर्टिकल्चर हो गया उसको एक प्राइमरी व्यवसाय के रूप में अपना दिया और इसने कृषि क्षेत्र को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा जो गाय भैंस है वो आय को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद स्रोत के रूप में उभरा हुआ है अभी। और 2020-21 में जो मिल्क प्रोडक्शन थी, दुग्ध उत्पादन था, वो उसमें 2.95% की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि 2020-21 में मिल्क प्रोडक्शन में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 2.95% और अंडों के उत्पादन में 4.20% की वृद्धि हुई। और वहीं हम बात करें मांस के उत्पादन की तो उसमें -9.60% रही। इसके अलावा पशुधन में 5.6 और मछली पालन में 9.6% की वृद्धि हुई। वानिकी और खनन क्षेत्र 2020-21 में वानिकी की बात करें -19.6 और खनन में -6.8% की वृद्धि दर्ज की गई। तो इसका एक इजीली हम एक चार्ट जैसा बना सकते हैं, हमारे माइंड में ये चीजें होनी चाहिए। सेकंड हमारा जो क्षेत्र आता है वो आता है सेकेंडरी क्षेत्र। द सेकेंडरी सेक्टर ब्रॉडली कंप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन। एज पर फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट फॉर 2021 एट कांस्टेंट प्राइसेस, GVA of the secondary sector is estimated at 49,610 crore against 53,137 crore for 1920 and it has registered a growth of -6.6% over the previous year. तो यहां पे जो इसकी जो ग्रोथ है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर वो है -6.6%। सेकेंडरी क्षेत्र में देखिए, प्राइमरी क्षेत्र उसमें आता है कृषि, पशुधन, हॉर्टिकल्चर, मछली पालन और जैसे अंडों का उत्पादन वगैरह, जिसने मुर्गी पालन जिसे हम काउंट करते हैं, उनके बारे में बात की। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सेकेंडरी क्षेत्र के बारे में। तो सेकेंडरी क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती है पहले इसको समझना जरूरी है। सेकेंडरी क्षेत्र में आता है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, जो वाटर हमारे घर में लगे हुए हैं नल, और निर्माण क्षेत्र, विद्युत, गैस, इन सबको सेकेंडरी क्षेत्र में माना जाता है। तो इसमें स्थिर कीमतें ली जा रही है 2011-12 की स्थिर कीमतें ली जाती है। पर वर्ष 2020-21 के लिए जो फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट था उसके अनुसार गौण क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी क्षेत्र का जो सकल मूल्य वर्धन था 49,610 करोड़ हुआ है, जो कि वर्ष 2019-20
जो सेकंड रिवाइज एस्टिमेट था उसमें 53,137 करोड़ था। तो इसमें क्या हुआ है कि -6.6% की वृद्धि हुई है, यानी कि कम उत्पादन हुआ है पिछले वर्ष के मुकाबले, इसलिए माइनस में। अब हमारा आता है थर्ड, टर्सरी और सर्विसेज सेक्टर। Services sector has a significant and fast-growing share in the state GBA. It comprises trade, hotel, restaurant, transport, storage and communication, banking and insurance, real estate, professional services and community and social and personal services. It registered growth of -2.1% in 2021 first revised estimate over the previous year. The gross value added of service sector for the year 2021 first revised estimate is estimated at 44,198 crore as against 45,152 crore in 1920 second revised estimate. तो सेक्टर वाइज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट बेसिक प्राइसेस इज गिवन। तो प्राइमरी सेक्टर में हमने देखा, प्राइमरी सेक्टर में हमें ये चीजें तो समझ आ गई कि प्राइमरी सेक्टर में हम किन चीजों को काउंट करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में तो हो गया कृषि, एक हो गया हॉर्टिकल्चर, एक हो गया फिशरीज यानी कि मछली पालन, और एक हो गया जैसे हैचिंग वगैरह, जैसे मुर्गे पालते हैं लोग, अंडों का जो व्यापार करते हैं। और जो सेकेंडरी क्षेत्र है, सेकेंडरी क्षेत्र में हमारा हो गया जलापूर्ति, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र, उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। अब आता है टर्सरी और सर्विसेज सेक्टर। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आती है इसमें देखिए, बिजनेस, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, भंडारण, संचार, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विसेज, सामुदायिक सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाओं ने पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में -2.1% की वृद्धि दर्ज की है। जो सेवा क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन वर्ष 2020-21 प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार है 44,198 करोड़ है, जो वर्ष 2019-20 में 45,152 करोड़ था। क्षेत्रवार सकल मूल्यवर्धन स्थिर कीमतों पर नीचे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर करता है। सो फर्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी सेक्टर की बात की जा रही है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पे करोड़ में ये सारा जो फिगर्स दिए गए हैं। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 9,930। हाँ, कृषि एवं पशुपालन में 9,930 करोड़, और इसमें इस इकोनॉमिक सर्वे में जो इसकी वैल्यू है 9,930 करोड़ रुपए आया है, और इसमें जो वृद्धि है वो -8.6% है। और इसके अलावा वन एवं लट्ठे बनाना, जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग, लॉजिंग मीन्स लट्ठे बनाना, 4,128 करोड़ रुपए आए हैं, और इसमें अगर बात करें वृद्धि की तो -19.6 है, यानी कि लास्ट ईयर के मुकाबले में कम इंप्रूवमेंट हुई। इसके अलावा आता है खनन एवं उत्खनन, यानी कि माइनिंग एंड क्वेरिंग, इससे हमें आया है 246 करोड़, और उसमें वृद्धि हुई है -6.8%। मत्स्य पालन 107 करोड़, और मत्स्य पालन में वृद्धि हुई है 9.6%, यानी कि इनमें सिर्फ मत्स्य पालन ही है जहां पे जो इंप्रूवमेंट है बहुत ज्यादा, यानी कि जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसके मुकाबले हमने ज्यादा बिजनेस किया है, ज्यादा इनकम जनरेट की है। और इसके ये हमारा हो गया प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी क्षेत्र। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी क्षेत्र यानी कि गौण क्षेत्र। तो गौण सेकेंडरी सेक्टर 2020-21 फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट ग्रॉस वैल्यू एडेड 49,610 करोड़, और इसमें जो ग्रोथ है वो -6.6%। तो मैन्युफैक्चर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग 34,640 करोड़, कंस्ट्रक्शन 7,826 करोड़ आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई से 7,144 करोड़। और इनमें जो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ है -7.3% की है, कंस्ट्रक्शन में -12.3% की है, इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई में +4.5%। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई में हमने ज्यादा इनकम जनरेट की है इस ईयर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट इज तृतीय क्षेत्र 2020-21 यानी कि टर्सरी और सर्विसेज सेक्टर। इसमें जो 44,198 करोड़ हमने अर्जित किए हैं, और जो हमारी वृद्धि है वो -2.1% की है।
यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट, भंडारण मीन्स स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में हमने जो इनकम जनरेट की है 4017 रुपए, 4017 करोड़ जनरेट किया है। और इसमें जो वृद्धि की बात करें -24.5% की है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले में बहुत कम है। और हाईएस्ट डिप है ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट, भंडारण और संचार में। और इसके अलावा हम बात करेंगे अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज में 10,923 करोड़, और इसमें जो इंप्रूवमेंट है 6.4% की है, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5,902 करोड़ रुपए, और इसमें जो इंप्रूवमेंट हुई है +2.8% की हुई है। नेक्स्ट है रियल एस्टेट ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। इसमें 11,638 करोड़ रुपए आए हैं, हालांकि इंप्रूवमेंट जो है -2% की है। नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज से हमें 3,247 करोड़ रुपए आए हैं, और इसमें जो इंप्रूवमेंट है -1.5%। नेक्स्ट आ गया व्यापार, होटल एंड रेस्टोरेंट। बिजनेस, होटल एंड रेस्टोरेंट में 8,471 करोड़ रुपए आए हैं, और इंप्रूवमेंट, वृद्धि इसमें है -2.1% की। तो यहाँ पे हम एक बात तो क्लियर है कि अगर हम सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो जो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है वो अदर सर्विसेज में हुई है, और सबसे ज्यादा यानी कि माइनस में इंप्रूवमेंट हुई है वो परिवहन, भंडारण और संचार में हुई है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। इसमें हमने 4,017 रुपए अर्जित किए हैं, -24.5% की इंप्रूवमेंट। और अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड जो वाटर सप्लाई है उसी में पॉजिटिव में हमारा है 4.5% का इंप्रूवमेंट। और अगर प्राइमरी में हम बात करेंगे तो मत्स्य पालन, यानी कि जो मछली पालते हैं लोग, उसमें 107 करोड़ रुपए कमाए हैं, और वृद्धि जो है इसमें 9.6% की है, पॉजिटिव। और वन एवं लट्ठे बनाना, फॉरेस्ट एंड लॉजिंग, इसमें जो इंप्रूवमेंट है -19.6% की, ज्यादा है माइनस में सबसे। तो नेक्स्ट बात करते हैं एस्टिमेट्स ऑफ जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस। The GSDP for the year 2021 first revised estimate at current prices is 1,56,675 crore as against 1,59,162 crore for 2019-20 second revised estimates. Estimate of GVA at current basic prices for the year 2021 is 1,46,241 crore against 1,49,201 crore for 1920. The sectoral contribution at current basic prices is given in the table. तो अभी हम टेबल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने बात की कि प्रचलित कीमतें जो है उसमें जो राज्य का सकल घरेलू उत्पादन वर्ष 2020-21 जो पहला जो एस्टिमेट था उसमें 1,56,675 करोड़ था, जबकि 19-20 यानी कि 19-20 का जो सेकंड रिवाइज एस्टिमेट था उसको यहाँ पे लिया गया, उसमें 1,59,162 करोड़ था। और इसके अलावा प्रचलित जो आधारभूत कीमतें थी उनमें सकल मूल्य वर्धन उत्पाद वर्ष 2020-21 में 1,46,241 करोड़ था, जो वर्ष 2019-20 में 1,49,201 करोड़ था। तो यहाँ पे टेबल हम पढ़ते हैं। यहाँ पे 2018-19 का प्राइस दिया गया है, 2019-20 का दिया गया और 2020-21 का दिया गया है। एंड जो सोर्स है इसका इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो लेट्स स्टार्ट। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड सेक्टर सेकेंडरी, एंड सर्विसेज टर्सरी सेक्टर। और इसके फोर्थ पॉइंट है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट करंट बेसिक प्राइसेस। एंड नेक्स्ट इज जीएसडीपी एट मार्केट प्राइसेस। सो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर की 2018-19 में 18,207 करोड़, 2019-20 के सेकंड एस्टिमेट में 22,814 करोड़, और 2020-21 जो फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट था और जब कोरोना एंटर किया था तो 19,893 करोड़। यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि 2018-19 के मुकाबले हमने इंप्रूवमेंट दर्शाई है कोविड के बाद। तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज 13.10%,
13.10% था 18-19 में। इसके अलावा यहाँ से बढ़ के हम 15.30% आ गए 2019-20 में, और 2020-21 में हम आ गए 13.61%। मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड सर्विसेज की बात करें, जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारा, उसमें 62,381 करोड़ एंड 44.88%। 2019-20 में 62,381 से हो गया 62,479, और यहाँ पे जो परसेंटेज में बात करें 41.88%, 44.88 से 41.88। एंड 2021 61,004 और 41.71, यानी कि यहाँ पे डिप आ गया। सर्विसेज की हम बात करें 58,396 करोड़ 42.2%, 63,908 करोड़ 42.82%, 65,344 44.68%, यानी कि अभी भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है सर्विसेज सेक्टर में। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट करंट बेसिक प्राइसेज इज 1,38,984 100, 1,49,201 100 एंड 1,46,241 100। यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है अगर हम कंपेयर करें 1890 से। जीएसडीपी एट मार्केट प्राइसेस इज 2018-19 का है 1,48,383, 2019-20 का है 1,59,162 एंड 2020-21 का है 1,56,675। तो यहाँ एक बात दिमाग में रखने वाली यह है कि 2020-21 में ही लॉकडाउन का जो असर देखने को मिला था, क्योंकि लॉकडाउन इस दौरान लगाया गया था। अब बात करते हैं एज पर 2020-21 एस्टिमेट्स जीबीए क्रॉस वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूशन एट करंट प्राइसेस फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इज 19,893 करोड़ 13.61%. For the same period the contribution from the secondary sector stood at 61,004 crore 41.71%, while that from the services sector is 65,344 crore 44.68%. The estimates of GDP of HP and India from 11-12 to 2021 at current and constant prices are given in table below. So इस टेबल में इंडिया का और हिमाचल प्रदेश का एक कंपैरिजन बताया गया है जीडीपी का, फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट का, एंड वैल्यूज आर इन करोड़। सो हिमाचल प्रदेश इन 2011-12 2011-12 में जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस जो था वो 72,720 था, एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो वो 87,36,329 था, और कांस्टेंट प्राइस पे 87,36,329, और हिमाचल का था 72,720 जीडीपी करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। और अगर हम 2012-13 की बात करें तो ग्रोथ हाईएस्ट था हिमाचल की बात करें, और सेम जो था इंडिया में भी 2012-13 में 13.9% का करंट प्राइजेज में, और कांस्टेंट प्राइजेज में ग्रोथ था 6.4, और इंडिया का जो ग्रोथ था 13.8 और 5.5। इसके अलावा 13-14 में हिमाचल में ग्रोथ हाईएस्ट था, वो था 14.4, और वो था करंट प्राइजेज में 14.4, और कांस्टेंट प्राइजेज में ये था 7.1% का। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो 13% का था 2013-14 में, और 6.4% का था कांस्टेंट प्राइजेज में। करंट प्राइजेज में था 13% का 2013-14 में। उसके बाद हम बात करते हैं 2019-20 की, तो 7.3 का ग्रोथ था करंट प्राइजेज में, और कांस्टेंट प्राइजेज में था 4.1% का। वहीं इंडिया की बात करें तो जहां हिमाचल का करंट प्राइजेज पे जीएसडीपी 7.3 था, हिमाचल का 6.2% था, और कांस्टेंट प्राइजेज पे हिमाचल का 4.1 था, भारत का 3.7 था। अब बात करते हैं 2020-21 में, तो हिमाचल का यहाँ पे ग्रोथ रेट थोड़ा ज्यादा नेगेटिव में था, -1.6 करंट प्राइजेज पे, और कांस्टेंट प्राइजेज पे था -5.2%। वहीं हिमाचल की बात करें -1.4% और -6.6% था। तो हिमाचल की जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं नेशनल जो जीडीपी है उसके आसपास ही है। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो पर पर्सन आया है हिमाचल प्रदेश में उसकी हम बात करेंगे। तो
प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 2020-21 में जो पहला जो एस्टिमेट था उसके अनुसार जो प्रचलित कीमतें होती है करंट प्राइजेस, तो डिक्रीज टू 1,83,333 इन 2021 फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट फ्रॉम 1,85,728 इन 19-20 सेकंड रिवाइज एस्टिमेट जो हुआ था, एंड रजिस्टरिंग ए ग्रोथ ऑफ -1.3%, यानी कि कम वहां पे इंप्रूवमेंट हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। एज कांस्टेंट प्राइजेस 2011-12 द पर कैपिटा इनकम फॉर द 2021 was estimated at 1,33,079 against 1,40,048 in 1920 second revised estimate, resulting a growth of -5%. A comparative picture of per capita income current price of Himachal and India from 2011-12 to 2021 is tabulated below. तो भी एक टेबल आने वाला है, उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं कि करंट प्राइजेस के बारे में और एक हम बात करते हैं कांस्टेंट प्राइजेस के बारे में, तो करंट प्राइजेस जो होता है तो अभी चल रहा है, और कांस्टेंट प्राइजेस वो होता है जहां पे हम 2011-12 का ही रेट उठाते हैं और उसी के अनुसार जो इंप्रूवमेंट है या वृद्धि हो रही है, हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, जो भी है उसी के अनुसार तय करते हैं। तो तब ये माइनस, कभी आप देख रहे हो कि +8.38 का इंप्रूवमेंट हुआ, कभी -21 का डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ही कहते हैं, माइनस में हुआ, तो यानी कि वहां पे जो कांस्टेंट प्राइजेस है वो सेम ही रहेगा 2011-12, और करंट प्राइस जो आजकल का चला हुआ है। सो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम का टेबल दिया गया है, और पर कैपिटा इनकम हम देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो पूरे इंडिया की पर कैपिटा इनकम है बहुत ज्यादा है, मतलब काफी अच्छी है। 2011-12 में 87,221, जबकि इंडिया में थी 63,462, और 2020-21 में 1,83,333 है हिमाचल में, और पूरे भारत की बात करें तो 1,26,855 है। और 2019-20 की भी बात करें तो 1,85,728, और पूरे भारत की 1,32,115। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं संभावनाओं के बारे में 2021-22 के बारे में। So as per the advance estimates based on the economic performance of the state up to December 2021, the economic growth rate of state during 21-22 is likely to be 8.3%, showing a sharp recovery after COVID-19 pandemic. The state achieved a growth of -5.2% in 2021 first revised estimate and 4.1% in 1920 second estimate. As per AE advance estimate GSDP at current prices in the year 21-22 is likely to be about 1,75,173 crore. So according to advance estimate, the per capita income at current prices for 21-22 is estimated at 2,01,854 against 1,83,333 in 2021. तो यानी कि 1,83,333 से 2,01,854, और इसमें जो इंप्रूवमेंट है वो हम देख सकते हैं। होने वाली है 10.1% की ग्रोथ। A brief analysis of economic growth in Himachal revealed that the state has kept pace with the India's growth rate as shown in table. तो नीचे टेबल दिया गया है। एंड टेबल में तो अवधि औसत विकास परसेंटेज का दिया गया है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड फर्स्ट टू 12th, 20 to 17, और उसके बाद में एनुअल प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है तो 2017 से लेके 2022 तक। तो इसमें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 51 से 56 थी, उसमें हिमाचल का जो औसत विकास दर परसेंटेज था वो था 1.6% प्लस में, और पूरे भारत का जो विकास दर था वो 3.6% था। और 2021-22 में अगर हम बात करें वार्षिक परियोजना में,
और बीच में एक टाइम ऐसा भी आया जब हिमाचल की जो औसत विकास दर थी वो भारत से ज्यादा हो गई, और वो पहले तो आया था वार्षिक योजना में 1978 से 79, 1979 से 80 में, जहां पे उसमें हिमाचल की लो गई थी। जो हिमाचल की इंप्रूवमेंट थी वो थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1985 से 90 में जो चली थी। उसमें हिमाचल की जो रेट था, प्रति औसत विकास दर थी, वो 8.8% की थी और पूरे भारत की 6% की थी। और इसके बाद जो 9th पंचवर्षीय योजना थी 1997 से लेकर 2002 तक, उसमें 6.4% थी हिमाचल की और 5.6% थी भारत की। और ऐसा किस परियोजना में हुआ है कि भारत की और हिमाचल की जो औसत विकास दर थी वो बराबर थी? तो वो हुआ है 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2007 से लेकर 2012 में, जहां पे 8% भारत की और हिमाचल की सेम थी। और अगर हम बात करें वार्षिक परियोजनाओं की, तो वार्षिक परियोजनाओं में भी 2019-20 में हिमाचल की जो औसत विकास दर थी 4.1% थी और पूरे भारत की 3.7% थी। और 2021-22 की बात करें आफ्टर पैंडेमिक, 8.3% हिमाचल की है और 9.2% भारत की है। नेक्स्ट हमारा पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन। State government mobilizes financial resources through direct and indirect taxes. Non-tax revenue, share of central tax and grant in aid from central government to meet the expenditure for administrative and developmental activities. According to the budget estimate for the year 21-22, the total revenue receipts were estimated at 37,028 crore against 35,588 crore in 2021. Revised estimate. For the financial year 2021, the State Excise and Taxation Department collected 7,044.24 crore taxes under different heads against a target of 6,886.13 crore. During the current financial year 21-22 up to December 21, the department has collected 6,232.24 crore of taxes under different heads against the annual target of 6,964.84 crore. Component-wise revenue target for the financial year 2021 and 21-22 achievement up to December 2021 are given below. तो यहाँ पे जो बात की गई है कि जो राज्य सरकार की जो विकासात्मक गतिविधियां चलाती है, प्रशासन कैसे करना है, उसका जो भी खर्च होता है वो उसके लिए सरकार के रहते डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है। एंड इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जाते हैं उनमें से स्टेट गवर्नमेंट को हिस्सा आता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी मदद मिलती है, तो उसी के बारे में बताया गया कि बस 2021-22 के जो बजट अनुमान है उनके अनुसार जो प्राप्ति यानी कि जो इनकम हुआ है वो 37,028 करोड़ हुआ है। लेकिन जो 2020-21 का जो संशोधित अनुमान है उनके अनुसार यह 35,588 करोड़ थी, तो इसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो नीचे जो डायग्राम दिया है यहां पे क्लियरली ये चीजें बताई गई है। तो फर्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस एंड टारगेट दिया गया है पे, और जो एक्चुअल जो रिसिप्ट हमें प्राप्त हुई है उसके बारे में दिया गया। तो 3451.39 करोड़ में दिया गया है। तो 3,451.39 करोड़ का टारगेट था गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, और एक्चुअल जो रिसिप्ट थी वो 3,466.58, यानी कि इंप्रूवमेंट है इसमें। और टारगेट जो 2021-22 का है वो 3,106.25 था। एंड दिसंबर अचीवमेंट जो है दिसंबर 2021 में 3,157 स्टेट एक्साइज 1624.26 का टारगेट था। 2020-21 का 1,599.74 ही हुआ है। और 2021-22 का अगर हम बात करें वो 1,867.90 करोड़ था और 1,436.2 करोड़ ही हुआ है, यानी कि जो टारगेट था उससे कम टैक्सेस प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं वैट की। 1,467.38 था, 1,630.11 हुआ है, इसमें इंप्रूवमेंट हुई थी। और ये 2020-21 का है। 21-22 में 1,614 का दिया गया।
जब हमने 1630 का किया तो 1614.10 का दिया, जिसमें से 1309.74 का ही प्राप्त हुआ। बाकी के जो टैक्सेज हैं उनके बारे में दिया गया है। और अदर टैक्स एंड ड्यूटीज 262.76 का टारगेट था, 264.26 हुआ 20-21 में, वेरी गुड। लेकिन जब 21-22 में हम आए तो 88.37 का था टारगेट, और इसमें सिर्फ 69.4 का ही करोड़ का टारगेट पूरा हुआ है। पैसेंजर एंड गुड टैक्स 80.34 करोड़ का टारगेट था, 83.55 करोड़ प्राप्त हुआ है। 88.37 करोड़ का टारगेट था, 79.4 करोड़ प्राप्त हुआ है। तो अगर हम टोटल की बात करें, जो टारगेट था 2020-21 का वो था 6,886.13 करोड़, और हमने प्राप्त किया है 7,044.24 करोड़, यानी कि हमने इंप्रूवमेंट 2020-21 में हमने ज्यादा टैक्स प्राप्त किया एज कम्पेयर टू अवर टारगेट्स। और उसी जब हम नेक्स्ट ईयर का बात करें 2021-22 में, तो हमारा टारगेट था 6,964.84 करोड़, और हमने प्राप्त किया 6,232.24 करोड़, यानी कि हमने जो टारगेट था हमारा उससे बहुत कम टैक्स प्राप्त किया है। नेक्स्ट आ गया रिवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी कि राजस्व प्राप्तियां। So next is revenue receipts. Government receipts can broadly be divided into non-debts and debts receipts. The non-debt receipt consists of tax revenue, non-tax revenue, grant in aid, recovery of loans, and disinvestment receipts. Debt receipts mostly consist of market borrowing and other liabilities which the government is obliged to repay in the future. So major financial parameters of state government. तो इसमें फाइनेंशियल जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में दिया गया है। रिवेन्यू रिसिप्ट्स, टैक्स रिवेन्यू इंक्लूडिंग सेंट्रल शेयर, नॉन टैक्स रिवेन्यू, डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, टोटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन्स डिस्बर्स्ड, इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो इसमें हम बात करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी कि राजस्व प्राप्तियां जो थी 2017-18 में 27,367 करोड़, 2018-19 में 30,950 करोड़, 2019-20 में 30,742 करोड़, 2020-21 में 35,588 करोड़, और 2021-22 में 37,028 करोड़। तो यानी कि इनमें इंप्रूवमेंट हुई है। अगर हम बात करें 2017-18 की तो 27,367 करोड़ था, जो कि 37,028 करोड़ हो गया है 2021-22 में रिवेन्यू रिसिप्ट्स का। एंड नेक्स्ट हमारा है टैक्स रिवेन्यू इंक्लूडिंग सेंट्रल शेयर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगा। तो उसमें भी हम बात करें 11,909 करोड़ 2017-18 से 14,806 करोड़ हो गया है 2021-22 में। और थर्ड हमारा है नॉन टैक्स रिवेन्यू, 2,364 करोड़ से 2,754 करोड़ हो गया है करोड़। फिर नेक्स्ट है विनिवेश प्राप्तियां, 35 करोड़ से अभी 0 करोड़ है। 2018-19 में 9 करोड़ था, 2019-20 में 2 करोड़ था, जो कि अब डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट्स। रिकवरी ऑफ लोन्स 40 करोड़ का रिकवरी किया हमने 2017-18 में, और 2021-22 में हमने किया 41 करोड़ का। टोटल एक्सपेंडिचर 34,811 करोड़ था, जो हम बात करें 2021-22 में वो बढ़ के 50,192 करोड़ है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 27,053 करोड़, और अभी ये पहुंच गया है 2021-22 में 38,491 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर 3,756 करोड़ एंड 6,013 करोड़ अभी। लोन्स डिस्बर्स 503 करोड़, और 2021-22 में बहुत ही कम, यानी कि 354 करोड़ लोन डिस्बर्स हुए हैं। तो अभी आप देखो 2017 के बाद 2022 तक सबसे कम जो लोन डिस्बर्स हुए हैं 2021-22 में। इंटरेस्ट पेमेंट 3,788 करोड़ 2017-18 में, और 2021-22 में 5,018 करोड़। तो यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि जो हमारा टैक्स है, टैक्स इंक्रीज होता जा रहा है, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा लगभग दोगुना हो गया, दोगुने से थोड़ा सा कम। और लोन जो जनता को दिए गए, वो लोन जो प्रोवाइड करवाए हैं वो बहुत, मतलब 503 करोड़ से 354 करोड़ पे हम आ गए हैं। और जहां पे इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो वो 3,788 से 5,018 करोड़ पे पहुंच गई है। तो यहां से आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो कि क्या स्थिति चल रही है एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। तो यहां पे राजस्व प्राप्तियां, यानी कि जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, इनमें भी आप सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा। जो
राजस्व व्यय है वो 19.53 करोड़ से 21.97 करोड़ पहुंच गया है। और इंटरेस्ट पेमेंट 2.73 2017-18 में थी, 2021-22 में हमने पे की 2.86 करोड़। और नॉन टैक्स, तो ये सारी ये जो टेबल है ये आप पढ़ सकते हो। टैक्स रिवेन्यू यहाँ से बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टैक्स रिवेन्यू। अकॉर्डिंग टू बजट एस्टिमेट ऑफ 21-22, टैक्स रिवेन्यू इंक्लूडिंग सेंट्रल टैक्सेस वाज एस्टिमेटेड एट 14,806 करोड़ अभी का 2021-22 का, और 2020-21 का है 12,312 करोड़। तो यानी कि टैक्स रिवेन्यू हमारा बड़ा है, लास्ट ईयर के मुकाबले 12,312 से हम पहुंच गए 14,806 करोड़। नेक्स्ट है नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स revenue consists mainly of interest received on loans, received from sale of power, dividend and profit from public sector undertaking, and receipts from services provided by the government like general services such as those provided by public service mission, social services such as health and education, economic services such as irrigation, etc. The non-tax revenue is likely to increase to 2,754 crore in 21-22। और अगर हम 2021 की बात करें तो ये था 2268, 2,268 करोड़ था, और अभी की बात करें तो 2,754 करोड़, showing an increase of 21.43%. This is estimated to be 1.57% of state GST। तो यहाँ से हमें काफी नॉन टैक्स रिवेन्यू जनरेट हुआ है। Non-debt capital receipts consist of recovery of loan and advances and disinvestment receipts. Budget estimates for 21-22 envisages 41 crore as recovery of loans and no income from disinvestment. As per budget estimate of 21-22, total expenditure of state government was estimated to be 50,192 crore, out of which 38,491 crore, which is 76.69% was embarked for revenue expenditure। एंड देखिए, पहला हमने जो पढ़ा इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। कर राजस्व, बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में कर राजस्व यानी कि जो टैक्सेस से हमें पैसा मिलेगा वो हमें 14,806 करोड़ मिलने की अनुमान है। तो पिछले वर्ष तो 2020-21 में था वो 12,312 करोड़ मिले थे, अभी 14,806 करोड़ यानी कि ज्यादा मिलने का अनुमान है, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहेगा। ये तो हो गया कर यानी कि टैक्सेस से। और गैर कर राजस्व यानी कि बिना टैक्सेस के जो हमें इनकम होगी, तो उसमें देखिए गैर कर राजस्व मुख्यतः ऋण पर प्राप्त, यानी कि सरकार ने ऋण दिया होता है उस पे जो क्या बोलते हैं ब्याज आता है, बिजली की जो सेल्स होती है, और सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ और लाभांश, सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, सामान्य सेवाओं जैसे लोक सेवा आयोग, सामाजिक सेवाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा। तो वहां पे भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो पैसे आप वहां पे दोगे वो सरकार को मिलेंगे। शिक्षा में भी जो आप फीस दो। आर्थिक सेवाएं जैसे कि सिंचाई, अगर आप पानी है आपके नल में, घर में नल है उसमें पानी आता है, गवर्नमेंट की स्कीम है, तो आप सरकार को बिल दोगे तो वहां से वो होगा, वो राजस्व में जाएगा, सरकार के खाते में जाएगा, लेकिन वो टैक्स का नहीं होगा, वो सर्विसेज का होगा आपका। गैर कर राजस्व 2021-22 में 21.43% की वृद्धि दर्शाते हुए 2,754 रहने का अनुमान है, और 2020-21 की बात करें तो 2,268 था, और यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.57% है। फिर आ गया गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां, ये तो हमने बात की थी, जो ऋण दिए उनसे भी मिला हमें। अब देखिए यहाँ पे ऋणों प्राप्तियों में, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में ऋण की वसूलियों और विनिवेश से प्राप्तियां शामिल है। बस 2021-22 के बजट अनुमान में ऋण की वसूलियों से 41 करोड़ मिलने की संभावना है, और विनिवेश से कोई आय नहीं। तो बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार का कुल व्यय जो था 50,192 करोड़ रहने की संभावना, जिसमें से 38,491 करोड़ राजस्व व्यय होने का अनुमान था। तो बजट में जो अनुमान लगाए गए हैं वो राज्य सरकार का जो कुल व्यय होगा वो 50,192 करोड़ होगा, और 38,491 करोड़ जो कुल बजट का 76.69% है, राजस्व व्यय होने का ही अनुमान है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है
As per the budget estimate, the revenue receipt of the government for the year 21-22 was estimated to be 21.14% of GSDP as against 22.71% in 2021 revised estimate. Similarly, the tax revenue for the year 21-22 was estimated at 8.45% of GSDP as compared to 7.86% during 2021. Non-tax revenue is 1.57% of GSDP in 21-22 as compared to 1.45% during 2021. In 21-22, the total expenditure of state is estimated to be 28.65%. The estimate for revenue expenditure is 21.97%, while that for capital expenditure is 3.43% of the GST. And next है trend in official indicators. टेबल नीचे टेबल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि एस्टिमेट फॉर ग्रोथ ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द स्टेट पर 24.14 एंड 17.80% रिस्पेक्टिवली। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बजट जो अनुमान है उसका राज्य सरकार की जो राजस्व प्राप्तियां थी वो अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की 21.14% होने का अनुमान है और वर्ष 2020-21 संशोधित अनुमान में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की 22.71% होती। इसके साथ ही कर राजस्व वर्ष 2021-22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 8.45% की संभावना है, 2020-21 में 7.86%। इसके अतिरिक्त गैर कर राजस्व 2021-22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.57% होने की संभावना है, जो वर्ष 2020-21 में 1.45% था। वर्ष 2021-22 में राज्य का कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.65%, राजस्व में 21.97% और पूंजीगत व्यय 3.43% अनुमानित है। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंड्स major chunks of its expenditure on revenue expenditure in 2022. It is estimated that 77% of total budget spending will be on revenue expenditure. Composition of revenue expenditure is given in table 2.8, which reveals that 55% of total expenditure is likely to spend on salary, pension, interest payment and subsidies in 21-22. Expenditure on salary, pension and interest payment is committed expenditure in nature and has limited headroom for creation of additional financial space. Subsidies have been moderated at 2.1% of total expenditure in 21-22. तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टेबल हमारे सामने आ गया है। इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट अभी जो स्पेंड करने वाली है 2020-21 में 77% पूरे बजट का सिर्फ जाएगा सैलरीज में, गवर्नमेंट स्पेंड मेजर चंक ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होगा उसमें 77% जाएगा एंड इसकी कंपोजिशन यहाँ पे दी गई है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो फर्स्ट देखिए सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस एज परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। पेंशन, इंटरेस्ट, सब्सिडीज। तो यहाँ पे हम बात करें कि सैलरी एंड वेजेज एट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, तो हम अभी की बात करेंगे 2021-22 की, तो 28.70 चला जाएगा सैलरी में और वेजेज में 28.70 करोड़, और पेंशन की बात करें तो 14.11 करोड़ जाएगा पेंशन में। इंटरेस्ट एज परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे 10 करोड़ का पे करेंगे, एंड सब्सिडीज इंटरेस्ट एज परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर वो हम करेंगे 2.15 करोड़ का। तो टोटल एक्सपेंडिचर होगा जो 2017-18 में हुआ था 34,811 करोड़ का हुआ था, 2021-22 में जो होगा वो होगा 50,192 करोड़ का। ग्रोथ ऑफ मेजर आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन गिवन इन बिलो टेबल। तो देखिए नीचे एक टेबल दिया गया है ग्रोथ ऑफ मेजर आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी एंड वेजेस, पेंशन, इंटरेस्ट एंड सब्सिडी। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें वेतन और पेंशन का जो व्यय है एक्सपेंडिचर है वो वृद्धि दर है
वृद्धि वर्ष दर वर्ष बढ़ी है। वेतन व्यय में वर्ष 2020-21 में 27.14% की दर से वृद्धि हुई और 21-22 में 2.92% की कमी होने की संभावना है। इसके अलावा पेंशन का जो व्यय है वो 2017-18 में 14.46% था, 2018-19 में 6% था, यानी कि बहुत कम हो गया पेंशन। वर्ष 2020-21 में 32% रही, लेकिन 2021-22 में 2.53% की कमी होने का अनुमान है। जो 32.36 करोड़ आप देख रहे हो वो पॉजिटिव है, यहाँ पे परसेंटेज में बात की जा रही है, और 32% का जो पॉजिटिव है -2.53, यानी कि नेगेटिव में इसकी वृद्धि होगी। ब्याज भुगतान जो होगा, बढ़ोतरी 2017-18 में 13% थी, ऑलमोस्ट 18-19 में 6% तथा 2021-22 में 9% होने की संभावना है। अनुदान पर व्यय में वर्ष 2017-18 में 19%, 2018-19 में 41% की दर से इसकी वृद्धि हुई है और वर्ष 2019-20 में 17 की दर से कमी हुई। वर्ष 2020-21 में 8% की फिर से वृद्धि और 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में 7% की और कमी आ गई। और ये जो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, ये हमारी जो राज्य सरकार है उनकी ऋण की स्थिति है, जो ऋण लिए हैं हमारी गवर्नमेंट ने। तो इंटरनल डेब्ट, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक अकाउंट एंड अदर लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज, A+B, GSDP, डेब्ट एज परसेंटेज ऑफ GST। तो टेबल शो कर रहा है डेब्ट एज परसेंटेज ऑफ GSDP बाय 35.25% इन 2019-20, यानी कि 2019-20 में जो ऋण का सकल घरेलू अनुपात है 2019-20 में 34.22% था और 2018-19 में 34.22% था, 2019-20 में 35.25% हो गया है। तो उसका मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट पे जो प्रेशर है, जो ऋण है, वो और बढ़ गया है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। यहाँ पे हमने डिस्कस किया डिटेल में और बहुत सारी चीजें हमें अंडरस्टैंड भी हुई, और अभी तक हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा कोविड-19 के बारे में। हिमाचल की जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा और जो सुधार हमने किए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक का जो भी किया है, तो इसमें पहले तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे बैठना पड़ता है। तो इकोनॉमिक सर्वे अगर पूरा करना है तो इसके लिए थोड़े से एफर्ट हमें मारने पड़ेंगे, एंड इकोनॉमिक सर्वे से हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इस वीडियो को जब हम 3 से 4 बार देख लेंगे तो ये चीजें हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आने लगेंगी, क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल से इनको पढ़ा है। आप इजीली जो आप अपनी स्क्रीन पे जो स्लाइड्स देख रहे हो, आप इजीली इसको वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, या गूगल में आप सर्च कीजिए कि हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड, वहां से आप लिंक पे पहुंच जाओगे। और जो इकोनॉमिक सर्वे की जो कॉपी होगी उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया होगा, एंड एकदम डिटेल में हम यहाँ पे कर रहे हैं, सभी चीजों को क्लियर कर रहे हैं, और इससे आई होप कि आपको बहुत फायदा होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो। एंड अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और ओनली 2 ही चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि अगले 10 दिनों में पूरा इकोनॉमिक सर्वे खत्म करके हमें इस महीने बजट भी खत्म करना है। सो लेट्स होप कि हम फिनिश कर पाए। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर कोई इसमें इशू आए तो आप मुझे बता सकते हो। आज का एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जो अटल टनल है कौन से नेशनल हाईवे पे स्थित है। आपको नेशनल हाईवे का नंबर बताना है कमेंट्स में, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेशनल हाईवे 21 नहीं है। तो कौन सा नेशनल हाईवे है, कहां से कहां तक का है, ये चीजें आपको कमेंट में बतानी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।